جو چاہے وہ پنجاب، سندھ، KPK یا بلوچستان ہے، ہماری یونیورسٹیز ہمارے نوجوانوں کو کیا سکھا رہی ہیں؟ ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کی، اپنے بچوں کی اس طرح آبیاری کریں علم کے ذریعے کہ وہ ایک مفید اور ایک ذمہ دار شہری بن جائیں۔ تو جو اصل مقصد ہے تعلیمی اداروں کا، وہ ایک ذمہ دار شہری بنانا ہے۔ صحیح ہے۔ ہم ان کے اندر یہ میچورٹی لیول دے دیں کہ وہ ایک اچھے اور برے کی پہچان کر سکیں۔ باقی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جی کاغذ کا ٹکڑا، دیکھیں اگر آپ اس چیز کو دیکھیں تو الحمدللہ میں یہ بات فخر سے میں کر سکتا ہوں کہ ہمارے وہ پاکستانی گریجویٹ جن کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس کاغذ کا ٹکڑا ہے، وہ یہی کاغذ کا ٹکڑا لے کر اس وقت الحمدللہ پوری دنیا میں بہترین اداروں میں وہ اپنی سروسز پیش کر رہے ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں تو آپ دیکھیں دنیا کے جو ویل نون نیوکلیئر سائنٹسٹ ہیں وہ پاکستانی ہیں۔ صحیح ہے۔ اگر آپ دیکھیں ناسا ہے، پینٹاگون ہے، یا آپ اس طرح کے جو دوسرے اسپیس سائنس کے اندر آپ دیکھ لیں تو یہ سارے جو گریجویٹس ہیں یہ ہمارے ہی اداروں سے پڑھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو جہاں تک یہ نا کہ کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے، بیسیکلی یہ ان کی جو فائنل اسیسمنٹ ٹیچرز نے کی ہے، ان کے مختلف ایگزامز لے کے، یہ ان کی وہ ایک رسید ہے کہ انہوں نے اتنے پرسنٹ نالج کو کنسیو کیا ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا، اب آپ کا یہ تھا کہ جی اس کے علاوہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ ہاں جی۔ اچھا، یہاں پر میں ایک اور چیز کر دوں۔ جی۔ دیکھیں پہلا جو دور تھا وہ آئی تھنک یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا نہیں تھا۔ صحیح ہے۔ اب جو آنے والا دور ہے وہ انفارمیشن سائنس کا ہے۔ صحیح ہے۔ جس میں کمپیوٹر سائنس ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، سائبر سیکورٹی ہے، ڈیٹا سائنس ہے۔ اچھا، اب یہ آپ کو میں یہاں یہ بتاتا چلوں کہ الحمدللہ ہماری یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور سمیت باقی جو یونیورسٹیز بھی ہیں پاکستانی جو اور ادارے بھی ہیں، جی، اب وہ اپنے کوریکولم کو، اپنے نصاب کو ان ماڈرن لائنز کے اوپر لے کر آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جیسا کہ میں اگر اپنے یونیورسٹی آف لاہور کی بات کروں، میرے پاس وہاڑی کیمپس میں اس وقت ہم ای کامرس، جی، فری لانسنگ، جی، ڈراپ شپنگ، جی، یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، ویب ڈیولپمنٹ، جی، اس کے یہ سارے کورسز ہم ان کورسز سے علاوہ ہٹ کے کروا رہے ہیں تاکہ اگر کوئی بچہ یہ 3 مہینے کا یہ کورس کر لے تو وہ کم از کم اس قابل ہو جائے گا کہ وہ اپنی فیملی کو فائنینشلی سپورٹ کرے گا۔ اور آپ کا جو پہلا پوائنٹ تھا کہ جی پیرنٹس اتنے پیسے لگا کے بچوں کو یہ ڈگریاں دلواتے ہیں، تو یہ دیکھیں ان ریٹرن ہمارے ادارے آپ دیکھیں ان بچوں کو اس لیول پہ لے کر آتی ہیں کہ کل وہ بچے ارننگ کر کے اپنے پیرنٹ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہو جائیں اور ان کو وہ سپورٹ کریں۔ اور یہاں میں جسٹ آپ کی بس یہ ایک انفارمیشن کے لیے کہ اس وقت تقریباً 2 لاکھ سے زیادہ، ٹھیک ہے، جو ہمارے گریجویٹس ہیں وہ فارن کنٹری میں جا کے چلے گئے ہیں اپنا ہائر اسٹڈیز کے لیے، اور یا پورے پاکستان کی میں بات کروں، اوور آل اگر میں بات کروں، ظاہر ہے کہ یہ ہمارے اداروں نے ہی آگے ان کو پروجیکشن دی ہے، اور وہی لوگ جب باہر جا کے وہاں پہ کام کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ ہمارے ملک کا نام روشن کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات، ابھی میں اگر اپنے وہاڑی کیمپس کی بات کروں تو ہمارے وہ بچے جنہوں نے یہ ای روزگار کے ذریعے، یہ فری لانسنگ کے ذریعے، ای کامرس کے ذریعے انہوں نے یہ کورسز کیے ہیں، اور اس وقت پوری دنیا سے، خاص طور پہ امریکہ، یورپ سے ان کی جو فارن ٹرانزیکشن ہو رہی ہے وہ تقریباً لاکھوں ڈالر میں چلی گئی صرف یہ وہاڑی میں۔ ٹھیک ہے۔ تو ڈیفینیٹلی یہ کریڈٹ ہمارے ادارے کو بھی جاتا ہے کہ ہم ملکی ترقی میں ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ صحیح ہے جی سر۔ جو بیسکلی میرا کویسچن تھا وہ کاغذ کے ٹکڑوں سے مراد یہ تھا کہ جو اسٹوڈنٹس پیسے لگا رہے ہیں، پیرنٹس پیسے لگا رہے ہیں، اس کی ایک رسید دی جاتی ہے 2 سال بعد، 4 سال بعد کہ جی آپ نے یہ ڈگری 65% ہے، 68% ہے، 90% ہے، 95% ہے، یا 4/4 CGPA ہے، 3.5 CGPA ہے۔ یہ جو چیز میرا کویسچن تھا وہ یہ تھا کہ کیا اس کے ساتھ یہ کاغذ کے جو ٹکڑے رسیدیں، اس پیسوں کی رسید ہے، کیا اس کے ساتھ اخلاقیات، ادب، پرسنل جو امپرومنٹ ہے، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے، ان چیزوں کے متعلق کیا ہمارے ادارے جو ہیں وہ اس طرح کی کوئی تربیت دے رہے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس کو کہ جب وہ اپنے ادارے سے باہر نکلیں گے تو وہ ایک سفیر بن کر کام کریں گے؟ بالکل جی، آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جو آج کے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں نا، یہ بنیادی طور پہ ہمارے کل کے فیوچر لیڈر ہیں جی۔ اب جب ہمارے اسٹوڈنٹ جہاں پہ جب ہمارے پاس پڑھتے ہیں تو ہم ان کی اخلاقی تربیت کے لیے صحیح ہے ان کو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے لیے میرے پاس وہاڑی کیمپس کے اندر، یونیورسٹی آف ایجوکیشن کے باقی کیمپسز کے اندر بھی
तकरीबन 20 के करीब डिफरेंट सोसाइटीज़ बनी हुई हैं। सही है। उसके अंदर जैसे ये करैक्टर बिल्डिंग सोसाइटी है और उसके डिफरेंट Sports- सेक्शंस होते हैं, स्पोर्ट्स की हो जाएगी। होती हैं। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं कोई वो लिटरेरी होती सोसाइटी हैं। वगैरह है उसकी। जी, हम बाकायदा ये मुख्तलिफ किस्म की अदबी ये मुशायरे से रेलेवेंट इनकी मजलिसें करवाते हैं। ठीक है। और आपके पूरे माशाल्लाह ये मुल्तान डिवीज़न से मुख्तलिफ जो बड़ी बड़ी बिग पर्सनैलिटीज़ हैं जी। वो उनमें तशरीफ़ लाती हैं। तो ज़ाहिर है कि बच्चों को एक तो उनसे सीखने का भी मौका मिलता है ठीक है और सर। सबसे पहले ये कि हम अपने बच्चों को कोशिश करते हैं कि वो करैक्टर बिल्डिंग की तरफ आ जाएं। ठीक, और ओके। इसके लिए हमारे जो इसके एडवाइज़र हैं करैक्टर बिल्डिंग सोसाइटी के डॉक्टर इमरान साहब जी। हैं, वो बाकायदा इसके लिए एफर्ट भी कर रहे हैं और डिफरेंट प्रोग्राम्स भी इसमें हमारे होते रहते हैं। ठीक है सर। एक आपने जो बात की कि हमारे तकरीबन पाकिस्तान से तकरीबन को 2 लाख नौजवान वो मुल्क पाकिस्तान से डिग्रियां लेके बाहर शिफ्ट हो रहे हैं और वहाँ से वो डॉलर्स पाकिस्तान में भिजवा रहे हैं। क्या ऐसा कोई यहाँ पे ऐसा कोई मैकेनिज़्म नहीं है कि जो नौजवान इतना बासलाहियत नौजवान जो किसी फॉरेन कंट्री को अपनी सर्विसेज दे रहा है वो पाकिस्तान में भी दे? क्या ऐसे तालीमें हमारे यहाँ पे स्किल्स ऐसी नहीं दी जाती? ये जो अवैसी साहब आपका जो क्वेश्चन है ना जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट इस लिहाज से मैं कहूँगा जी कि देखें तालीमी इदारों ने बच्चों की आप ज़हनी तौर पे आप यारी करके उनको इस काबिल कर दिया है कि वो कुछ अर्निंग करें। जी। अब ये देखें ये पूरे मुल्क का इस वक्त मसला जो है वो इस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस है। बिल्कुल। और आपको पता है कि इस वक्त IMF की इन कंडीशनों पे हमें वो पैसे दे रही है। हमारी इस वक्त इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, उसके कौन जिम्मेदार हैं, ये एक अलग डिबेट है। सही है। अच्छा, अब देखें यहाँ पे जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है पाकिस्तान में वो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का। जी। और जॉब अपॉर्चुनिटी आपको तब मिलती है अगर मुल्क में इंडस्ट्री हो। सही है। और इंडस्ट्री के लिए आपको पता है जो फाइनेंस है वो रीढ़ की हड्डी का काम करता है जी। और गवर्नमेंट की उसमें सपोर्ट होती है। सही है। अब आपके सामने आप देखें जो आपकी पावर क्राइसिस है, लोड शेडिंग कितनी हो रही है, जी। इंडस्ट्री नहीं चल सकती। हाँ जी। इंडस्ट्री चलती है तो उसका वो जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो नहीं पूरा- अफोर्ड कर जी। सकते। अब देखें ना, अगर वही हम यहाँ एक चीज़ प्रोड्यूस करती है हमारी इंडस्ट्री अपना 100 रुपये में, चाइना वाले वो हमें 50 रुपये में दे रहे हैं, सही बात है। तो लोग उसको खरीदेंगे, हमारी इंडस्ट्री को तो वहाँ पे सपोर्ट नहीं मिलेगी। ठीक तो है। ये एक ऐसा टॉपिक है कि ये हमारे सियासतदानों को, हाँ जी। हमारे जो साबिक़ इक़्तिदार हैं उन लोगों को, जी। उनके लिए ये एक अलमिया है कि हम किस तरह अपने जो ब्रेन है उसको हम रोकें जी। कि वो सर्विसेज जो बाहर जाके दे रहे हैं वो यहाँ पे हमें दें। अच्छा, एक आपका यहीं से एक रेलिवेंट पॉइंट है जी। कि कल हमारे एक अमेरिका से दोस्त तशरीफ़ लाए, उन्होंने ये मुझे बात शेयर की कि अमेरिका में इस वक्त जो एक आम लेमैन है, लेमैन, जी। वो अगर 1 घंटा अपनी सर्विस देता है ना, हाँ जी। उसको मिलते हैं $17। ठीक है। अब $1 कितने का है? तकरीबन 275 चलें 270, 300 जी। $17 कितने के बन गए? तकरीबन हम अराउंड अबाउट 4000 कर जी। लेते हैं जी। अब 1 घंटे के वो कमा रहा है 4000, जी। और जब आप 8 घंटे वो काम करेगा हाँ जी। तो इसका मतलब है वो कितने पैसे कमाएगा? 3200 जी। रुपये, जी 32,000। 32,000 रुपया। जी। और मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि हमारे कई ऐसे ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के एम्प्लाई हैं जिनकी मंथली इनकम 30,000 के करीब है। मतलब 30,000 से भी कम है बाज अब देखिए ना, कंपैरिजन करें ना जी, कंपैरिजन करें हाँ जी। कि हमारा 1 महीने की कमाई उनके 1 दिन के बराबर जा रही है। अब ये जो इंसेंटिव है, जब तक हम अपने ग्रेजुएट्स को यहाँ पे नहीं देंगे हाँ जी। तो वो कैसे यहाँ पे स्टे करेंगे? ठीक है डॉक्टर साहब, चलें बात को आगे बढ़ाते हैं। ये एक बड़ा अलमिया है जी। कि मतलब जो हमारे तालीमी इदारे होते हैं, क्योंकि हम लोग पर्टिकुलरली यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहे हैं, तो तालीमी इदारों में ये एक अलमिया है कि ख़ास तौर पे तालिबात जो हैं वो जिनसी हिरासानी की जो है ना वो शिकायत करती नज़र आती हैं। मैं यूनिवर्सिटीज़ का नाम नहीं लूँगा क्योंकि आप एक जो इदारा है उसके हेड हैं और आपके नॉलेज में यकीनन ये बातें होंगी। पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ का नाम भी मीडिया में रहा है, अखबारों में, सोशल मीडिया पे भी गर्दिश करता रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो पर्टिकुलरली ये जो फैक्टर है जिनसी तौर पर हिरासा करने वाला, तो इसके पीछे अवामिल क्या होते हैं और ऐसा कोई मैकेनिज़्म नहीं है कि हम लोग इसको रोक सकें ताकि तालिबात कम अज़ कम तालीमी इदारों में तो अपने आप को महफूज समझें? अवैसी साहब, आपने अब ये जो
ये पॉइंट रेज किया है, क्वेश्चन किया है, ये भी बड़ी अहमियत का हामिल है अपनी जगह पे। सही है। अच्छा, यहाँ पे अब दो चीज़ें ऐसी हैं कि वो ना यहाँ हर बंदे की फिंगर टिप पे है। सही है। एक तो ये सेक्सुअल हरासमेंट है जी। और नंबर 2 पे ड्रग एब्यूज़ है। जी। अच्छा, ये दो टॉपिक ऐसे हैं कि अगर कोई भी बंदा, कोई भी सहाफ़ी है, कोई भी ले मैन है, अगर कोई भी किसी तलीमी इदारे से कंप्लेन होती है ना, तो ये दो एलिगेशन उसके दाएं हाथ में है। हाँ जी। यानी एक दाएं हाथ में एक बायां, जो उसको मिल गया उसने वो लगा देनी है। जी। अच्छा, यहाँ पे आप देखें कि मैं आपको ये एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ, एक चीज़ पॉइंट ज़हन में रखिएगा कि ताली हमेशा 2 हाथों से बचती है। सही है। ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बचती। अब जहाँ पर भी ये सेक्सुअल इश्यूज आते हैं जी, तो वहाँ पे वो आपने ये ताली का कंसेप्ट एक तो जहन में रखना। सही बात है, बिल्कुल। इसका मतलब है कि अगर आप अकेले टीचर को ब्लेम देंगे, हाँ जी, तो वो भी गलत है। सर, टीचर को हम लोग स्पेसिफिक नहीं करते, टीचर है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन का अगर बंदा है, आप कोई सिक्योरिटी स्टूडेंट्स वाला है। को ब्लेम देते हैं तो वो भी गलत है। जी। ये ताली जब भी बचती है 2 हाथों से बचती है, दोनों तरफ से रजामंदी होती है। रजामंदी होती है। अच्छा, अमूमन ये होता है जो आप हरासमेंट की बात करते हैं, क्योंकि मैं 5 साल से ये यूनिवर्सिटी के मैटर को देख रहा हूँ। अब मैंने जो चीज़ ऑब्जर्व की है मैं आज आपके साथ वो शेयर करता हूँ। ठीक है। अब होता ये है कि यूनिवर्सिटी में एक मेल और एक फीमेल स्टूडेंट की आपस में फ्रेंडशिप हो गई। ठीक है। वो फ्रेंडशिप 2 से 3 महीने चली, हाँ जी, 4 महीने चली, 6 महीने चली। एक मुद्दत के बाद जी उसमें ब्रेक आया और वो जो फीमेल थी या मेल पार्टनर था उसने उसको पहले को छोड़ा और वो अब तीसरे के साथ उसकी इन्वॉल्वमेंट हो गई। ठीक है। अब जब तीसरा आता है ना कोई भी, तो क्या होता है, वो जो पहले 2 हैं ना, वो एक दूसरे के खिलाफ एप्लीकेशन देती हैं, जी इसने मुझे हरास किया, इसने मुझे हरास किया। सही है। एक तो ये मैटर है जी। और वो बेसिकली क्या होता है कि उनकी जो पुरानी गपशप लगी होती है मैसेजेस के ज़रिए, वो एज ए प्रूफ दे देते हैं, जी ये देखें जी इन्होंने मुझे ये मैसेज किया। ठीक है। हालांकि वो जो भी हुआ उनकी कंसेंट के साथ हुआ। सही है। अब आते हैं दूसरा पॉइंट। जी। दूसरा आता है जी कि टीचर जो है ना जी हमें हरास करता है। सही है। जी। कि जी उसने हमारे वो प्रेजेंटेशन के नंबर लगाने हैं या प्रैक्टिकल के लगाने हैं, या जो टीचर के हाथ में जो सेशनल के नंबर हैं, उसने जो असाइनमेंट है उसके वो नंबर लगाने हैं। अच्छा, यहाँ पे अब देखें कि टीचर को हरास करने की यहाँ पे अगर ज़रूरत पेश आई तो क्यों? अव्वल तो ऐसा वो करता नहीं है, रेयर केस होता है, कोई एक ऐसा अगर हो, वैसे मेरे पास अभी तक ये ऐसा आया नहीं है। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है। हाँ जी। और अमूमन ये होता है कि बच्चे ये कहते हैं जी हमें ये टीचर ने ये हरास किया। वहाँ पर भी इशू ये आता है कि बेसिकली वो टीचर को स्टूडेंट खुद हरास कर रहे होते हैं, जी हम आप पे ऊपर ये एलिगेशन लगाएंगे तो आप इन रिटर्न अपनी इज्जत बचाने के लिए हमें नंबर देंगे। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो टीचर्स को ब्लैकमेल करते हैं अपने ग्रेड्स बढ़ाने के लिए। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं बेसिकली इसका जो सोल्यूशन है, इसका जो हल है। देखें, ये एक चीज़ क्लियर है कि जहाँ भी पॉजिटिव और नेगेटिव तारें आपस में मिलती हैं ना, स्पार्किंग होनी होती है, धमाका होता है, धमाका भी होता है। हाँ, अगर वोल्टेज ज़्यादा हो तो वहाँ पे वो आपके बकौल धमाका भी हो सकता है। हाँ जी। पहली तो ये चीज़ है कि ये चीज़ क्यों आ रही है, इसके हमने मुहर्रकात को भी कंट्रोल करना है। ठीक है। और पहला इसका ये है कि हम अपनी ज़िंदगी को इस्लामी तालीमात के मुताबिक गुजारें। पेरेंट्स से भी ये गुजारिश है कि बच्चियाँ और बच्चे जब बड़े होते हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी में उनको तलीम दिलवाएं, आला से आला तलीम दिलवाएं, लेकिन जो उनकी जिस्मानी ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए, उनकी बाकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जो शरीयत में हुक्म है कि उनकी वक्त पे शादी की जाए, वो होनी चाहिए। ठीक है। अब मसला ये है कि हमारा ये एक सोशल इशूज़ है कि अच्छे रिश्तों की तलाश में बच्चियाँ भी बड़ी हो रही हैं, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। सही है। अब डेफिनेटली वो बच्चों ने अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए कहीं ना कहीं उन्होंने वो घाटी अपनी वो डालनी डालनी। सही बात है। एक तो ये चीज़ है। अच्छा, दूसरा पॉइंट यहाँ पे है कि इसको कंट्रोल करने के लिए देखें ज़्यादा मसला आता है यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में कम है, स्कूलों में कम है। उसकी वजह यूनिवर्सिटी में है सेमेस्टर सिस्टम। हाँ जी। आपने टीचर को इतना एम्पावर कर दिया है कि वही टीचर कोर्स पढ़ा रहा है, जी वही क्वेश्चन पेपर डेवलप कर रहे हैं, वही पेपर ले रहा है, खुद ही वो चेक कर रहा है, खुद ही वो सिस्टम के अंदर नंबरों को एंटर कर रहा है। हालांकि आप कॉलेज में देखें, स्कूलों में देखें, वहाँ पे हर स्टेप के लिए डिफरेंट जो लोग हैं ना वो अवेलेबल हैं। वहाँ पे पेपर कोई और बनाता है, पढ़ाता कोई और है, पेपर चेक कोई और करता है,
कंप्यूटर में एंट्री कोई और करता है, फिर एक सिस्टम है कि वो उन तमाम स्टेप्स को वहाँ पे मॉनिटर भी किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल के अंदर यहाँ पे चूंकि ये बात है कि पूरी दुनिया में तो वो टीचर एम्पावर है, लेकिन हम यहाँ हमारे यहाँ पे ये एक जो एम्पावरमेंट की गई है इसका चूंकि नेगेटिव यूज़ ज़्यादा है, लिहाजा इसको हम थोड़ा सा इसका एक मैकेनिज़्म बना लें यूनिवर्सिटीज़ में कि कोई सेंट्रल सिस्टम है जिसमें वो क्वेश्चन पेपर बन जाएँ, या पढ़ाने वाला कोई और हो, पेपर चेक करने वाला कोई और हो, और उसको रिज़ल्ट को तैयार करने वाला कोई, तो हो सकता है कि इसमें कोई जो थोड़ी बहुत है वो बेहतरी आ जाए। मतलब आपके कहने का मकसद ये है कि इससे बचने का एक तरीका ये भी है कि वो तमाम चीज़ें जो सिर्फ एक टीचर के अख्तियार में हैं, वो अगर उससे निकल जाएं, स्टेप बाय स्टेप किसी और के पास चली जाएं, तो इस चीज़ से बहुत हद तक बचा जा सकता है। सर, आपने जिक्र किया आपने इसी क्वेश्चन में ड्रग अब्यूज़ का, मेरा अगला वो क्वेश्चन था यही आपसे कि क्या ऐसे वजूहात हैं कि हालांकि तमाम लोग पढ़े लिखे होते हैं और नफ़ा नुकसान का भी पता होता है कि ये भी पता है कि ये मेरी सेहत के लिए नुकसानदेह है, ये मेरा फाइनेंशियल इसमें लॉस है, और इसमें मेरा जो है ना माशरे में मेरा एक जो किरदार है उस पर उंगली उठेगी, और फिर भी तालीमी इदारों में पढ़े लिखे लोगों में ये ड्रग वाली जैसी जो लानत है उस पर स्टूडेंट्स लगे होते हैं, और ख़ास तौर पर जो लड़कियाँ हैं वो भी आजकल इस मामले में मुलविस पाई जाती हैं, उनके बैग्स में उनके पास ये चीज़ें पाई जाती हैं। तो इसकी मुहर्रिकात क्या हैं और हम लोग इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? जी वैसी साहब, ये भी आपका जो नारकोटिक्स से रेलेवेंट क्वेश्चन है, ये भी अपनी अहमियत का हामिल है और बड़ा इस वक्त ये तवज्जो तलब है जी। अच्छा, मैं आपके सामने पाकिस्तान नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का जो एक सर्वे हुआ था आज से कोई 2 साल पहले जी, ये मैं उसका आपके साथ एक डाटा शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। जिसके मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जितने भी स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें 44% जो है ना ये ड्रग यूज़ किया हो रहा है। अच्छा। ये डाटा है जो पाकिस्तान नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड ने दिया है और आपके इंटरनेट पे ये मौजूद है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर देखें कि ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने ज़िंदगी में एक ना एक दफ़ा ड्रग को यूज़ किया है। सही है। और वो रेशो 1 और 5 की है। ठीक है। यानी 5 में से एक बंदा ज़रूर ऐसा आपको मिलेगा जिसने ज़िंदगी में एक दफ़ा टेस्ट ज़रूर किया होगा कि जब देखें तो सही ये है क्या। ठीक है। ये 1 और 5 की रेशो जी। अच्छा, अब इसमें एक और मज़े की बात मैं आपको बताऊं, जो यूनाइटेड नेशन ने रिपोर्ट पेश की है उसके मुताबिक पाकिस्तान में 7.6 मिलियन लोग हैं जो ड्रग अब्यूज़र हैं। 7.6 मिलियन। अच्छा, मज़ेदार की बात आगे देखें, उन 7.6 मिलियन के अंदर जो मेल की परसेंटेज है वो है 78%। ठीक है। और जो फीमेल हैं उनकी है 22%। ठीक है। ठीक है जी जी। अच्छा, अब ये एक बात यहाँ पे एक और भी ज़रा मज़ेदार है कि पाकिस्तान में हर साल 40,000 लोग जी इनकी तादाद बढ़ रही है पर ईयर, यानी 40,000 पर ईयर जो लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, नए लोग जो इसमें शामिल हो। और ये जो सारा डाटा मैं आपके सामने रख रहा हूँ ये इंटरनेट पे इस वक्त ये अवेलेबल है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं जी कि आपका जो क्वेश्चन था कि ये सारा जोर आपने डाल दिया तलीमी इदारों पे। हाँ जी। कि जी बात तलीमी इदारे ही हैं जहाँ पे ये सारा कुछ हो रहा है। सही है। जितनी ड्रग अब्यूज़ हो रही है जी जी, वो सारी तलीमी इदारों में हो रही है। सर वो इसलिए इस पे जोर डालते हैं क्योंकि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते हैं वो सारी पढ़ी लिखी कम्युनिटी होती है। हम लोग जो चौराहों पे, सड़कों पे या अड्डों पे जो इस ड्रग को यूज़ करते हैं वो तकरीबन अनपढ़ होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं, मांगने वाले होते हैं, गदागर होते हैं, वो ड्रग अब्यूज़ होते हैं। लेकिन चूँकि यूनिवर्सिटीज़ में जो भी लोग होते हैं वो तमाम वेल एजुकेटेड होते हैं, लेकिन फिर भी वो नशे की लत में लग जाते हैं। अफसोस तो इस बात का होता है। मैं इसी को अवैसी साहब थोड़ा सा इन अल्फाज में ये इसका जवाब देता हूँ। देखिए, अगर आप ज़रा कैलकुलेशन ज़रा कर लें थोड़ी सी। हाँ जी। एक दिन में 24 घंटे हो गए जी, एक हफ्ते में कितने हो गए? 168 जी आवर्स हो गए। अब जो स्टूडेंट आता है ना किसी भी तालीमी इदारे में, चाहे वो कॉलेज है, स्कूल है, यूनिवर्सिटी, मैक्सिमम वो 5 से 6 घंटे वहाँ पे गुजारते जी। 6 घंटे गुजारे उसने। हाँ जी। और कहीं हमारी क्लासें हैं 5 दिन, कहीं हैं 6 दिन, चले हम 6 दिन लगा लेते। जी जी। यानी उसने 168 आवर में से जो हमारे इदारे में गुजारे हैं वो 36 सही है। गुजारे हैं। ठीक है। Am I right? जी। और जो 132 घंटे हैं, 130 घंटे हैं वो उसने इदारे में नहीं गुजारे, वो बाहर सोसाइटी में वो बाहर गुजारे। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक और यहाँ पे क्लियर कर दूँ
کہ اگر کسی بھی ادارے کے اندر تعلیمی ادارے کے اندر آپ یہ بات کرتے ہیں جی وہاں پہ ڈرگ ایبیوز ہو رہی ہے، جی اب وہ ڈرگ پہلے آئی کہاں پہ؟ پہلے وہ ڈرگ اس سٹی میں آئی ہے جس ٹھیک میں ہے، وہ تعلیمی ادارہ ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے جی؟ جی اور سٹی میں پہلے کہاں سے آئی؟ اس پروونس میں جس میں وہ سٹی موجود ہے، صحیح ہے، اور وہ پروونس میں کہاں سے آئی؟ اس کنٹری۔ جی اب یہاں پہ جو ڈرگ ہے دو جگہ سے آ رہی ہے، یا جی ان سائڈ یا آؤٹ سائڈ۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ وہ تمام ادارے جو ہمارے انٹرنل معاملات کو دیکھ رہے ہیں جی ان کو پتہ ہے کہ ٹھیک ہے، کہاں کہاں پہ یہ ڈرگ بن رہی ہے، کہاں کہاں پہ بک رہی ہے، صحیح ہے، یہ ان کو کنٹرول کیوں نہیں کیا جا رہا؟ صحیح ہے، مطلب نمبر اس میں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے وہ تمام آتھورائزڈ ادارے جن کا کام ہی یہی ہے ڈرگ کو کنٹرول کرنے کا، ان کو اپنا کردار ادا کرنا وہ چاہیے۔ الحمدللہ کر بھی رہے ہیں، اور اگر کہیں وہ اپنا کمی بیشی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے وہاں پہ اس کو چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح زیادہ تر آتی ہے اکراس دا باؤنڈری، باہر کے ملکوں سے، ہم آپ کہتے ہیں یہ افغانستان سے آ رہی ہے یا کسی اور غیر ملک سے آ رہی ہے، جی جی تو بھئی وہاں پہ جو چیک اینڈ بیلنس ہے وہ کہاں پہ ہے؟ ٹھیک ایک ہے، تو یہ چیز ٹھیک ہے، تعلیمی ادارے میں تو آتی ہے سب سے اینڈ پہ، ہاں جی اس سے پہلے وہ کئی سرحدیں پار کر کے جی وہ آ رہی ہے، درمیان میں کتنے لوگ ہیں جو اس کو روک رہے ہیں، صحیح تو ہے، یہ ان کی ورکنگ کے اوپر بھی ایک کوسچن مارک ہے۔ صحیح ہے، اچھا میں یہاں ایک اور آپ کو بڑا ایک پوائنٹ میں کلیئر کر دوں یہاں جی پہ کہ دیکھیں پرانے دور میں جو ہوتا تھا نا، اس میں ہوتا تھا کسی نے وہ چرس والا، کوئی افیم والا یا کوئی اس طرح کا وہ سگریٹ کا استعمال کر لیا، صحیح ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ جی اچھا اب آج کا یہ جو لیٹسٹ اپنا جدید دور ہے نا، اب اس میں آپ کو پتہ ہے کہ جو یہ منشیات فروش ہیں ہاں جی وہ نشے والی جو چیزیں ہیں وہ کھانے پینے والی چیزوں میں ڈال کے بیچ رہے صحیح ہیں، ہے، جیسے آج کل آپ نے وہ سوشل میڈیا پہ اسٹرابری بچوں کے کینڈی لیے کا جو ہے، بڑا ہاں نام جی، سنا جی ہے۔ جی اچھا اب یونیورسٹی میں ہم اگر کسی اسٹوڈنٹ کو یا کسی بندے کو چیک کرتے ہیں، اس کے بیگ کو یا اس کی جیبوں کو، تو ہم سگریٹ کو تو باہر نکال سکتے ہیں، ہاں جی، کم از کم کھانے پینے کی چیزوں کو نہیں نکال اب سکتے۔ کھانے پینے والی چیزوں کو کہاں پہ چیک کریں؟ ٹھیک ہے، ایک تو یہ پوائنٹ ہے۔ ہاں جی، چلیں اگر کہتے ہیں جی چیک بھی کرنا ہے تو ہاں اس کے جی، لیے جو سینسر ہے، جو مشینری ہے، جو گیجٹ ہے، جی ٹھیک ہے جی، جی جی وہ ہونے چاہیے جیسے ٹھیک ہے، ایئرپورٹس پہ لگے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب کتنے تعلیمی ادارے ہیں، کتنے گیجٹس چاہیے، جی یہ بھی ایک کوشچن ہے یہاں پہ، جی ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، تقریباً مجھے 5 سال ہو گئے ہیں اس ادارے میں، وہاڑی میں، جی وہاڑی میں۔ اس جی میں یہ ہوتا ہے کہ موسٹ آف دا اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنے گاؤں سے ہی، گھر سے ہی، وہاں جو ان کے جو ڈیرے شیرے ہوتے ہیں نا جی، ہاں جی، ہاں جی، وہاں سے اگر کوئی کر کے اندر آ گیا ٹھیک ہے، اور اس نے کوئی گل کو پھاڑا کر لیا تو ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں، مطلب کیا وہاں پہ ہوتا ہے جی، اور الزام پھر وہ اس ادارے پہ ادارے آتا ہے پہ جس میں آ پڑھ رہا جاتا ہوتا ادارے ہے۔ پہ آتا ہے، ٹھیک ہے، یہ۔ ٹھیک ہے سر، اور باقی سر چلیں اب اس پہ بات ہو ہی رہی ہے، تو ان 5 سالوں میں کیا یونیورسٹی آف ایجوکیشن وہاڑی کیمپس میں خدا نخواستہ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے یا آپ کو کوئی اطلاع ملی ہو؟ میں آپ کو بتاتا ہوں جی، مجھے صرف ایک دفعہ ایک کمپلین آئی تھی جی کہ ایک بچہ کینٹین میں بیٹھ کے وہ جو ویپ کوئی ہوتا ہے وہ پی رہا ہے، جی ہم نے اسی وقت اسکرین سے اس کو دیکھا، پکڑا اور اس کو ہم نے وہ فائن کیا، جو اس کو ہم نے ایک سیمسٹر کے لیے وہاں سے آؤٹ بھی کر مطلب جو آپ کا ڈسپلنری جو الیکشن تھا، وہاں پہ فوراً ہمارے جو سیکورٹی گارڈس ہیں، ہمارا ماشاءاللہ جو پہلے ڈاکٹر ساجد راؤ صاحب تھے جو ہمارے سیکورٹی کوآرڈینیٹر ہیں، کوآرڈینیٹر تھے پہلے، اور آج کل وہ ہمارے ہیں حافظ گرائے صاحب ہیں، تو بڑے اچھے طریقے سے معاملہ دیکھ رہے ہیں۔ تو البتہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جی ادارے میں ہم نے ابھی تک کوئی ایسا نہیں دیکھا، لوگ کہتے ہیں میں کہتا ہوں ٹھیک ہے ہمیں پروف دیں، وی ول ٹیک دا ایکشن۔ ٹھیک ہے سامعین ناظرین، ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر شیخ اسرار احمد صاحب موجود ہیں، پرنسپل یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور وہاڑی کیمپس کے یہ پرنسپل صاحب ہیں، اور آج ہم ان سے تعلیمی اداروں میں جو ہمارے تعلیمی مسائل ہیں ان پر گفتگو کر رہے ہیں، اور اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے تو ضرور آپ ہم سے شیئر کیجیے۔ ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 06733666799۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں واٹس ایپ بھی اپنا کوئی کوشچن ہے جو تعلیم کے متعلق ہو، آپ سمجھتے ہوں کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں یہ مسئلہ ہے اور اس کا کوئی جواب لینا چاہتے ہوں تو ہمیں آپ واٹس ایپ ضرور کیجیے۔ واٹس ایپ نمبر ہے جی 0309021211 0309021211۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں آپ فیس بک پیج پہ جوائن کیجئے، ہماری لائیو نشریات دیکھیے بھی اور سنیے بھی۔ فیس بک لنک ہے جی ہمارا پاور 99 وہاڑی۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے جو پروگرام کا ٹائم ہے وہ ہاف آور ہو گیا ہے، اور اس آدھے گھنٹے کے بعد میں آپ کو کوئی ایک ملی نغمہ ضرور
سنواؤں گا Sure, تاکہ یہ تو تھوڑی سی بہت اچھا۔ ریفریشمنٹ ہو جائے گی. اس کے بعد جو ہمارے ریلیونٹ تعلیمی اداروں سے کویسچنز ہیں وہ بھی آپ کے سامنے مزید رکھوں گا. جتنے بھی ہمارے ٹائم میں میکسیمم ہم لوگ کوشش کریں گے کہ ہم لوگ اس کو شامل کر سکیں. اور جو ہمارے ویورز ہیں, جو ہمارے لسنرز ہیں, ان کے اگر جو کویسچنز ہیں تو وہ بھی میں آپ سے ضرور جو ہے وہ شیئر کروں گا اور ان کے بھی جواب جو ہے وہ ضرور آپ سے لیں گے ہم لوگ. چلیے جی, پہلے ہم لوگ ذرا ایک ملی نغمہ سنتے ہیں, ریفریش ہوتے ہیں, اس کے بعد آپ کو پھر دوبارہ سے میں کویسچنز آپ کے سامنے رکھوں گا. Power 99 FM. This is your destination. Excellent choice. Enjoy your stay. جی سامعین, ویلکم بیک. پروگرام آپ سن رہے ہیں باتوں باتوں میں ایف ایم ریڈیو پاور 99 وہاڑی کے اسٹوڈیو سے براہ راست. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ماہر تعلیم پروفیسر ڈاکٹر شیخ اسرار احمد, پرنسپل یونیورسٹی آف ایجوکیشن وہاڑی کیمپس. آج کا ہمارا پروگرام تعلیمی اداروں میں تعلیمی فقدان یا جو بھی سہولیات تعلیمی اداروں میں ہونی چاہیے وہ نہیں ہیں, ان پہ آج ہم بات کر رہے ہیں. اور اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے, کوئی آپ کی کیوری ہے تو ضرور ہم سے شیئر کیجئے. ہم ڈاکٹر صاحب کے سامنے ضرور رکھیں گے اور اس کا جواب بھی ضرور لیں گے. اپنی کیوریز اور سوالات کے لیے آپ ہمیں کر سکتے ہیں کال 06733666799. ساتھ ساتھ آپ ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں. واٹس ایپ نمبر ہے 0309021211. اور اس کے ساتھ ساتھ انتہائی ڈیجیٹل اور جدید ترین طریقہ پروگرام میں شامل ہونے کا فیس بک لنک کے ذریعے. ہمارا فیس بک لنک ہے جی پاور 99 وہاڑی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے پروگرامز تمام جو ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہے وہ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب چینل پہ پاور ریڈیو ایف ایم 99 آفیشیل. ضرور جو ہماری نشریات ہیں, خاص طور پہ جیسے آج کا پروگرام ہو رہا ہے تعلیم کے حوالے سے, ضرور اس پروگرام کو سننا بھی چاہیے اور شیئر بھی کرنا چاہیے تاکہ میکسیمم لوگوں تک اس کی پہنچ ہو سکے. ڈاکٹر صاحب ہمارے کالر تھے صوفی عبدالرزاق شرقی کالونی وہاڑی سے. وہ سوال یہ آپ سے کرتے ہیں کہ آج کل جتنے بھی یونیورسٹیز ہیں, خاص طور پہ انہوں نے کہا ہے کہ یونیورسٹیز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ انگلش بہت زیادہ بولتے ہیں, اردو بولتے ہوئے ان کو جو ہے نا شرم محسوس ہوتی ہے, اور وہ جو ان کی مدر ٹنگ ہوتی ہے پنجابی یا جو بھی مدر ٹنگ ہوتی ہے وہ تو بالکل بھی نہیں بولتے. اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ اپنی مدر ٹنگ کو ترجیح نہیں دیتے, باقی زبانوں کو ترجیح دیتے ہیں؟ جی ویسی صاحب, جو آپ کے قادر کے سوال کا جو جواب ہے وہ اسی سوال کے اندر آپ نے بول دیا جی کہ یہ جو آپ نے الفاظ بولے ہیں جی, اس میں کہ اسٹوڈنٹس کو اردو یا پنجابی بولتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے. جی دس از دا مین ریزن. صحیح ہے. اور یہ ایک بچے کا مسئلہ نہیں ہے, من حیث قوم جی ہم اپنی مادری زبان کو, ہم اپنی قومی زبان کو فوقیت نہیں دیتے. صحیح ہے. اور آپ اگر دیکھیں چائنا والے, جرمنی والے, فرانس والے, جی وہ ہمیشہ بلکہ جاپان میں کتنے ترقی یافتہ ہیں, جی اپنی وہ زبان کو وہ کبھی بھی مطلب وہ سیکنڈ نمبر پہ نہیں رکھتے. یہ پتہ نہیں پاکستان میں ہے کہ ہمارا جب بچہ آتا ہے نا 3-4 سال کا, تو اس میں میں بھی شامل ہوں, اس میں آپ بھی شامل ہیں, اس میں وہ یقیناً صوفی صاحب بھی شامل ہوں گے. ہم کہتے ہیں جی ہم نے اپنے بچے کو پڑھانا ہی انگلش میڈیم میں. صحیح ہے. مطلب شروع سے بچوں کا وہ ایک مائنڈ سیٹ مائنڈ سیٹ ہے. اب یہاں پہ یہ کہ بچہ پہلی کلاس ہی ہے نا, اس کو جب ہم نے انگلش میڈیم دے دیا ہے, ٹیچر اس کے ساتھ انگریزی میں بات کر رہے ہیں, اب وہ اس کے دماغ میں ایک اور چیز ڈال دی گئی کہ آپ انگلش بولیں گے تو آپ سپیریئر ہیں, پنجابی بولیں گے یا اپنا پھر بھی ٹھیک ہے, اگر آپ اردو بولیں گے پھر بھی ٹھیک ہے, پنجابی بولیں گے تو آپ انفیریئر ہیں. ٹھیک ہے. تو دیکھیں دنیا جتنی ترقی یافتہ قومیں ہیں نا, انہوں نے اپنی مادری زبان کو, اپنی قومی زبان کو اہمیت دی.
है। जी अब वो बच्चा जो स्कूल में आ रहा है ना पहली क्लास से अंग्रेज़ी पढ़ के, जी। जब ये यूनिवर्सिटी लेवल तक आ गया तो भाई उसकी अंग्रेज़ी तो ऑटोमेटिकली अच्छी होनी है। हाँ जी। अब मेरी बेटी का पेपर था कल परसों उर्दू का, तो उसको टेंशन थी कि मुझे उर्दू नहीं लिखनी आ रही। सही है। शी इज़ इन क्लास 6। सही है। अब कल उसका अंग्रेज़ी का था तो शी वॉज वेरी सेटिस्फाइड, कहीं मुझे तो आता है। क्यों? हाँ जी। क्योंकि उसने वो 6 साल पहले पढ़ा हुआ है सारा। सही है। तो ये एक अलमिया जो है ये हमारी पूरी कौम का है। ठीक है। तो इसका सब तो ये है कि हम ये कभी भी पंजाबी बोलने में, उर्दू बोलने में जी। शर्माए ना, नहीं, फ़ख्र से बोलें कि पंजाबी हमारी मादरी ज़ुबान है, उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान। बिल्कुल ठीक है। अंग्रेज़ी बोलें क्योंकि इंटरनेशनल है। मतलब हाँ, ये- आपको ये इतनी इसको- अंग्रेज़ी आनी चाहिए कि अगर आपको किसी अंग्रेज़ से बात करनी पड़ जी। जाए, कॉरस्पॉन्डिंग करनी पड़ जाए, उतनी अंग्रेज़ी तो आपको आनी चाहिए। आप भी माशाल्लाह एम इंग्लिश हैं, जी। हम इसको भी इससे ज़्यादा वो डिस्करेज नहीं कर सकते। इतना तो होना चाहिए, सही है। लेकिन नॉट एट द कास्ट ऑफ अवर मदर लैंग्वेज एंड ये जो दूसरी है नेशनल लैंग्वेज। सर मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अंग्रेजी को आप ज़रूरत बना के बोलें, मजबूरी ना बन जाए, मजबूरी मजबूरी नहीं बनानी चाहिए। मैं सर एक इंतहाई अहम क्वेश्चन की तरफ आपको ले चलता हूँ कि जो हमारे बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में, चाहे वो बैचलर के लेवल पे हैं, चाहे वो मास्टर या एम फिल या MS के लेवल पे हैं, एक जो बड़ा इंतहाई तवज्जो तलब क्वेश्चन है वो रिसर्च का है। मतलब डिग्री अगर BS की कंप्लीट हो रही है तो आखिरी 7वें 8वें सेमेस्टर में उनको इससे रिसर्च करवाई जाती है। लेकिन मोस्टली जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में ये देखा गया है कि जो बच्चे चाहे वो MPhil कर रहे हैं, MS कर रहे हैं या BS के आखिरी सेमेस्टर में हैं, वो रिसर्च करने से कतराते हैं और बने बनाए जो थीसिस उनके होते हैं वो कहते हैं कि चलो कोई नहीं 20-30 हज़ार रुपये लगाओ, 10-12 हज़ार 15 हज़ार जितने भी वो लगा लेते हैं और बने बनाए वो थीसिस ले लेते हैं, या फिर वो टॉपिक्स भी ऐसे सिलेक्ट करते हैं कि जो ऑलरेडी जिन पर रिसर्च हो चुकी होती है। तो क्या आप नहीं समझते कि ये हमारा जो मुस्तकबिल आ रहा है, ये हम लोग उस चीज़ से दूर होते जा रहे हैं जिसकी वजह से आज जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो तरक्की कर रहे हैं? जी, ये आपका जो क्वेश्चन है कि जो हमारे स्टूडेंट्स रिसर्च करने से कतराते हैं, बने बनाए थीसिस खरीद लेते हैं, क्या ये ज़्यादती नहीं? जी मेरा इसमें सिंपल आंसर होगा कि ये जुल्म है। सही है। ज़्यादती छोटा लफ्ज़ है। जी ये जुल्म है कि अगर कोई स्टूडेंट बना बनाया थीसिस प्रोजेक्ट ख़रीद कर और उसको वो क्रेडिट ले रहा है उसका, तो ये जुल्म, इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं। जी अच्छा, यहाँ पे अब आते हैं कि ये ऐसा हो कैसे रहा है, कर कौन रहा है, जी। ये एक बड़ा ये इसके मुहर्रकात हैं सब में। मुहर्रकात है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी बात पहले बता दूँ। इस वक्त पाकिस्तान में जी 255 यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। जिनमें कोई तकरीबन 170 के करीब जो हैं वो जो है अपना पब्लिक सेक्टर में हैं और बाकी ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है। अब देखें, जो बच्चा आता है ना सरकारी यूनिवर्सिटियों में, जैसे मैं अगर मैं अपनी बात करूं, हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन है, जी हमारी एक सेमेस्टर की जो फीस है वो तकरीबन कोई 20 से 30 हज़ार रुपये की एवरेज में आ रही है। ठीक है। पर मंथ निकालने वो 3-4 हज़ार रुपये तक चली जाती है। सही है। और आपके जो प्राइवेट स्कूल हैं इवन उनकी फ़ीस अभी 15-15 हज़ार रुपया पर मंथ है। अब जो हमारे पास बच्चे आते हैं ना वो गरीब हैं, सही है। उनकी पेइंग कैपेसिटी बहुत कम है, सही है। लेकिन उनको अल्लाह ने टैलेंट बढ़ा दिया है। जी तो ये मामला सरकारी यूनिवर्सिटियों में बहुत कम है। सही होगा है। जी। होगा, कम है, बहुत कम है। ठीक है। अब ये थीसिस खरीदते कहाँ जाते हैं? जहाँ पे उनको पे करने वाले हैं। बाकी आप खुद समझ जाएं हाँ जी कि इनको जो खरीद रहा है डेफिनेटली जी, ही हैज़ जी। मनी, वो खुद काम नहीं कर रहा, वो बड़ा बनाया थीसिस ले रहा है। जी तो ये चीज़ जो है कि इसको हाईली डिस्करेज होना चाहिए। जो हमारे इसमें अथॉरिटीज़ हैं उनको इसको चेक करना चाहिए कि अगर कहीं भी ऐसी रिपोर्ट होती है तो उसको फ़ौरन ठीक है। उसको कंट्रोल करें। ये मेरे पास भी एक रिपोर्ट आया था, एक केस रिपोर्ट हुआ था जी कि एक स्टूडेंट थी रिसर्च की, तो उसने जो अपना थीसिस था वो किसी से लिखवा लिया। सही है। जब मेरे बात ये सामने ही, तो मैंने फिर उस बच्ची की बकायदा उसकी काउंसलिंग की जी कि बेटा आपने काम ये गलत किया है, शी एक्नॉलेज। तो उसके बाद उसने फिर उसको दोबारा खुद रिफ्रेश किया, लिखा, उसकी सलाह हो गई। सर, लेकिन सर, ये देखें, जी, जी। काउंसलिंग भी ज़रूरी है जी बच्चों की, और दूसरा कि बच्चों का जो रिसर्च एप्टीट्यूड है ना, ये देखे तहकीक जो होती है ना, जी ये इंसान के अंदर बिल्ट इन चीज़ है। बिल्कुल ऐसे ही। अगर आप देखें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से क्यों निकाला? हाँ जी अल्लाह ने मना किया कि भाई ये जो दरख्त है ना इसके करीब नहीं जाना, लेकिन जो इंसान की तहकीक की, रिसर्च की, जो उसकी ख्वाहिश थी ना कि मैं देखूँ ना सही कि इसको क्यों मना किया गया, हाँ जी। उसकी वजह से वो खुद जन्नत से बाहर निकला है। जी। लिहाजा जो रिसर्च एप्टीट्यूड है ना, ये बिल्ट इन चीज़ होती है हर इंसान के अंदर। ठीक है। और अगर वो साइंस स्टूडेंट है
تو اس کے اندر تو بہت زیادہ ہے. اور میں آپ کو یہاں پہ ایک اور چیز کلیئر کر دوں. دیکھیں الحمدللہ اس وقت دنیا میں جو ٹاپ 2% سائنٹسٹ ہیں, اگر آپ ان کی لسٹ اٹھا کے دیکھ لیں, وہ پاکستانی ہیں. ہاں جی, وہ ہماری یونیورسٹیوں کے وہ زیادہ تر یا تو وہ اسکالرس ہیں یا وہ اساتذہ کرام ہیں, اور یہ یا ریسرچ جو ادارے ہیں وہاں کے جو امپلائنگ ہیں. تو 2% جو ٹاپ ہے تو یہ پاکستان میں ہو رہا ہے. اس کا مطلب ریسرچ کلچر ہے, صحیح ہے, ریسرچ ایپٹیچیوڈ ہے. لیکن اگر ایک یا دو بندے اس طرح وہ پیسے دے کے کہیں سے تھیسس خرید لیتے ہیں تو اس کا پھر جو بلیم ہے وہ باقی جو 99.9% لوگ ہیں ان کو نہیں دینا. سر اس میں میرا ایک ضمناً آپ سے یہ سوال ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جب بچے ریسرچ کے ٹاپک سلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے انٹرسٹ کے مطابق جو آپ کا ریلیونٹ فیلڈ ہے اس کے مطابق آپ کو ریسرچ کا ٹاپک سلیکٹ کریں, تو جو بیسیکلی ریسرچ کرنے کے ٹولز ہیں, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یونیورسٹیز میں ان میں کہیں فقدان ہو یا ان میں کوئی خلا ہو کہ جو ان کو بتایا نہ جاتے ہوں؟ دیکھیں جو ریسرچ سپروائزرز ہوتے ہیں نا وہ اتنے کین ہوتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ ان کے ساتھ آ کے کویسچنس کریں, ان سے پوچھیں, وہ ان کو بتائیں کہ یہ ریسرچ ایسے کرنی ہے, یہ ٹول یوز کرنا ہے, یہ میتھڈالوجی کرنی ہے, لٹریچر ریویو ایسے کرنا ہے, صحیح ہے, آپ نے جو ایبسٹریکٹ ہے وہ ایسے لکھنا ہے. یہ ساری چیزیں وہ بتاتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو. میں آپ کو بتا دوں جہاں بتانے والا بھی ہے, جہاں پوچھنے والا بھی ہے, وہاں تھیسس جینوئن بنتے ہیں. پرابلم وہاں پہ آتی ہے جہاں پہ نہ کوئی پوچھنے والا ہے نہ بتانے والا ہے اور پیسے کی فراوانی ہے. ٹھیک ہے, یہ پرابلم وہاں پہ ہے. سر میرا ایک اور کویسچن آپ سے وہ یہ ہے کہ خاص طور پہ بچوں کو کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے بہت ساری مشکلات کا سامنا ہوتا ہے, چاہے وہ ہم لوگ میٹرک تک ہوں, چاہے انٹرمیڈیٹ تک ہوں, یا پھر ایون کہ یونیورسٹیز میں جب بچے بی ایس میں جاتے ہیں تو ان کے کیریئر کے حوالے سے ان کو بہت ساری مشکلات. ہمارے اداروں میں ایسا کوئی میکینزم موجود ہے کہ ہم لوگ بچوں کی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے ان کو پروگرام سلیکٹ کروائیں کہ آپ کے لیے یہ پروگرام بنتا ہے؟ جی ویسی صاحب, یہ جو آپ کا کویسچن ہے نا, اگر میں اس کو تھوڑا سا باہر کے ملکوں کے ساتھ ریلیٹ کروں, دیکھیں وہاں پہ جب بچہ آتا ہے نا اپنی پرائمری لیول کے اوپر, تو وہاں پہ اس بچے کو آبزرو کرنے کے لیے ڈفرینٹ سائیکاٹرسٹ وہاں پہ بیٹھے ہیں, ایکسپرٹس بیٹھے ہیں, ٹیچرز بیٹھے ہیں. وہ اس بچے کی حرکات و سکنات کو دیکھ کے, اس کے ایپٹیچیوڈ کو دیکھ کے, وہ پھر اس کے پیرنٹ کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ یا تو اچھا اسپورٹس مین بنے گا, یا اچھا ڈاکٹر بنے گا, یا اچھا وکیل بنے گا, یا اچھا بزنس مین بنے گا. وہ اس کی اسی اینگل سے نا اس کی وہ پرورش وہ شروع کر دی جاتی. ٹھیک ہے. اچھا ہمارے ہاں جو المیہ ہے نا وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. صحیح ہے. ہمارے ہاں ایک ریس لگ گئی ہے نمبرز کی. میٹرک میں ہم نے کہنا جی بچے کو بھئی آپ کے نمبر جو ہیں وہ 100% آنے ہی چاہیے. وہ کیسے آنے, وہ رٹا لگا کے آئے, وہ بوٹیاں لگا کے آئے, وہ کسی بھی طریقے. اب بچہ جو ہے نا اس کا جو مائنڈ سیٹ ہے کہ جی میں نے نمبر لینے ہیں, بائی ہک لینے ہیں, بائی کروک لینے ہیں, جیسے بھی لینے ہیں بس لینے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کا جو خمیازہ ہے وہ قوم بھگتتی ہے, اور وہ اجتماعی طور پہ ریس لگ گئی ہے. مطلب وہ اس کا جو نقصان ہے وہ قوم کو اجتماعی طور پہ ہوتا ہے. ایک انفرادی بندے کا جو مطلب عمل ہے, جو فیل ہے, اس کا نقصان اجتماعی طور پہ پوری قوم کو ہو رہا ہے. اچھا اب وہ نمبروں کی ریس جب لگتی ہے نا تو آپ اس میں دیکھیں کہ ایک بورڈ کا جو ٹاپر ہے جس نے نمبر تو لے لیے, جب وہ اینٹری ٹیسٹ میں بیٹھتا ہے وہاں پہ وہ فیل ہو رہا ہے کیونکہ اس کے کنسیپٹ کلیئر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ یہ آپ کا جو کویسچن ہے کہ وہاں پہ کیریئر کاؤنسلنگ کی اتنی ضرورت ہے جب بچہ ہے نا اپنا میٹرک لیول سے نیچے وہاں پہ جو اسکول کے سربراہان ہیں یا گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں وہاں پہ سائیکاٹرسٹ کو بلا کے اس بچے کی اس طرح ہم کاؤنسلنگ کریں کہ اس کی جو صلاحیتیں ہیں اس کے مطابق اس بچے کو لے کر چلیں. یہ ایک ہے جو شروع کے لیول پہ ہونی چاہیے. لیکن الحمدللہ اگر میں بات کروں یونیورسٹی آف ایجوکیشن, پورا جو ہمارے وردی وائس چانسلر ہیں ڈاکٹر عاقف چودھری صاحب, یہ ان کی بھی انسٹرکشنز ہیں. صحیح ہے. ہمارے جتنے بھی کیمپسز ہیں, خاص طور پہ اگر میں بہاڑی کی بات کروں تو کیریئر کاؤنسلنگ کے لیے ہم نے میل اور فیمیل 2 الگ ایڈوائزر رکھے ہیں. صحیح ہے. ڈاکٹر عاطف صاحب ہیں جو اپنا بوائز کے لیے ہیں, میل اسٹوڈنٹس کے لیے ہیں, اور ڈاکٹر تہمینہ صاحبہ ہیں, تہمینہ فاضل, جو ہمارے فیمیل اسٹوڈنٹس کی کاؤنسلنگ کرتی ہیں. اور وہاں پہ وہ ان کی کاؤنسلنگ کیریئر کے حوالے سے بھی کی جاتی ہے, کریکٹر بلڈنگ کے حوالے سے بھی کی جاتی ہے, اور اس کے علاوہ جو ان کی ایکسٹرا کوریکولر ایکٹیویٹیز ہیں ان کے حوالے سے بھی کی جاتی ہے. تو یونیورسٹی لیول پر تو دیکھیں جب یہ ہم کاؤنسلنگ کرتے ہیں نا وہ کسی اور سینس میں ہے, لیکن
बच्चों की जो आप बात करें ना काउंसलिंग की, वो बहुत ही शुरू वाले लेवल पे हो जानी चाहिए। सबसे पहले तो ये दौड़ ख़त्म कर दें जी हमने बच्चे को बनाना ही डॉक्टर और इंजीनियर है। सही है। ये कंसेप्ट जो है ना इसने बड़ा बेड़ा गर्क कर दिया है। हाँ जी सर, हमें जो हमारे व्यूवर्स फेसबुक पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं तो उनके मैं आपको ज़रूर नाम शेयर करता हूँ। आज जट साहब हैं, वो आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आप तशरीफ़ लाए। मास्टर अब्दुल गफ़ार जी हरी माइनर मेलसी से, वो आपके बेहद मशकूर हैं कि आप आज प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। इसके साथ साथ समरा यासिर हमारी ये रेगुलर लिसनर भी हैं माशाल्लाह। और कमेंट्स भी करती हैं और बड़ा क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी रखती हैं। जी जी। वो आपसे एक सवाल भी करना चाह रहे हैं, ज़रूर आप उसको रिस्पॉन्ड कीजिएगा। उनके साथ साथ हमें महर अब्दुल सत्तार सैफी साहब ननकाना साहब से हैं, माशाल्लाह बड़ी दूर वो हमें देख रहे हैं, वो भी आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अच्छा, अब समरा यासिर का जो क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। समरा यासिर ये पूछते रही हैं आपसे कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स टेक पार्टिसिपेट, मतलब पार्टिसिपेट, उनका पार्टिसिपेशन जो स्टडी में होती है वो बच्चों की कितनी परसेंटेज है जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं। एक मिसाल 100 बच्चा पढ़ रहा है तो स्टडी का माइंडसेट लिए कितने बच्चे जो हैं परसेंटेज वो सिर्फ स्टडी के लिए आते हैं, बाकी किसी और काम के लिए आते हैं। अच्छा, ये अपना समरा बेटी का नाम है जो आपने बताया, समरा यासर। जी जी। अच्छा, समरा यासर का क्वेश्चन जहाँ वाकई बड़ा इंटरेस्टिंग है हाँ जी। कि कितने बच्चे हैं जो माइंडसेट लेकर आते हैं जी हमने पढ़ना है। जी। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि जो बच्चा यूनिवर्सिटी में दाखिला लेता है ना, हाँ जी। तो उसका माइंडसेट पढ़ने वाला था तो उसने एडमिशन लिया। जी। एक तो ये चीज़ है कि उसका दाखिला लेने का मकसद जो था वो यही था कि उसने पढ़ना है। जी। अच्छा, अगर हम बात करें उनकी परसेंटेज की जी। कि कितने वाकई रियली पढ़ते हैं या जस्ट वो उनका मकसद जो होता है कि बस हमने दाखिला लेके हला गुल्लाई करना है, सही है। जो मेरा ख्याल जो वो बेटी पूछना चाह जी, रही जी। है। तो इसमें ये होता है कि अगर आप देखें कि एवरेज क्लास अगर हम 50 बच्चों की ले लेते हैं हाँ जी। तो 50 में एक या दो बच्चे ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ने के शौकीन होते हैं। सही है, मतलब वो आप उनको फतीन कह सकते हैं, ज़हीन सही, फतीन। उन्होंने पढ़ना ही पढ़ना है। सही है। अच्छा, एक दो तीन वो होते हैं जिनका मकसद होता है शरारतें करना। सही है। उनका मकसद पढ़ना नहीं होता, उनका होता है ज़रा हल्ला गुल्ला करना। जी। और बाकी जो दरमियान में बच गए कोई 45 या 44 के करीब बच्चे, वो होते हैं मीडियोकर से। जी। उन्होंने पढ़ना भी है, उन्होंने बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर भी। तो लिहाजा मेरे जो कैलकुलेशन है, अगर इसको देखें 3 बच्चे भी लगा लें जो हल्ले गुल्ले वाले हैं, हाँ जी। तो ये 94% पढ़ने वाले बन गए और 6% है जो नहीं। सही है सर। उनका साथ एक क्वेश्चन ये भी है कि क्या यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि स्कूल्स लेवल पे तो प्रोग्रेस रिपोर्ट्स पेरेंट्स को शेयर की जाती हैं, क्या यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे भी प्रोग्रेस रिपोर्ट्स पेरेंट्स को शेयर की जाती है? इंतहाई इख्तिसार के साथ आप इसको ज़रूर रिस्पॉन्ड कीजिए। अच्छा, ये ना हमारे यहाँ जो यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के तमाम कैंपसेस के अंदर, डिविजन्स के अंदर ये मैकेनिज़्म है जी कि हमने हर स्टूडेंट का LMS अकाउंट जनरेट कर दिया है। सही, मतलब ऑनलाइन। ऑनलाइन, ठीक है। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है सर। उस LMS के ऊपर उस स्टूडेंट के तमाम मार्क्स की डिटेल आ जाती है। सही है। कि पहले सेमेस्टर के किस पेपर में कितनी परसेंट है, दूसरे में कितनी है, तीसरे में कितनी है, चौथे में कितनी है, ठीक या है। कहाँ पे वो फेल हुआ है, जी। वो सारी डिटेल LMS के अंदर है। जी। और उसकी जो एक्सेस है वो बच्चे के पास है। सही है। और चूंकि यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट है वो अकल है, बालग है, 18+ है, खुद जिम्मेदार है। अब वो अगर किसी को पासवर्ड देता नहीं देता, ये अलग बात है। हाँ, और ये अलग बात ये है। अलग बात है। लेकिन अगर उसके पेरेंट्स देखना चाहते हैं कि हमारे बच्चे की क्या है, तो वो अपने बच्चे को कहें जी अपना बेटा LMS अकाउंट खोलें, जी। वो सारी प्रोग्रेस आगे आ जाएगी। सही है, बिल्कुल। एक तो ये चीज़ ठीक है। है। दूसरा ये होता है कि बहुत सारे पेरेंट आते हैं, मेरे पास भी आते हैं, जो हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह कोई 10 के करीब मेरे पास डिपार्टमेंट हैं। जी। उनके तमाम हेड बड़ा एक्टिव माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं, सही तो वो है। डायरेक्ट उनसे भी अप्रोच कर लेते हैं। और वो टीचरों को तो वैसे ही पता होता है जी फलां बच्चा कैसा है, फलां कैसा है, तो वो बगैर LMS के ही बता देते हैं जी आपके बच्चे का। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर। मेरे पास जो वक्त है वो, अब हमारा प्रोग्राम क्योंकि अख्ताम की तरफ जा रहा है, सिर्फ 6 मिनट बचे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 6 मिनट में मैं आपसे 1-2 क्वेश्चन कर लूँ। जी जी। टीचर्स के रिफ्रेशर कोर्सेज या टीचर्स की ट्रेनिंग्स के लिए कोई मैकेनिज़्म है यूनिवर्सिटीज़ में कि अगर वो पढ़ा रहे हैं तो नए दौर जदीद के नए तकाज़ों के मुताबिक वो अपने लेक्चर्स जो वो बच्चों को जो पढ़ाने जा रहे हैं वो डिलीवर कर सकें? ये ना जी, जहाँ तक टीचर्स की ट्रेनिंग और उनकी जो रिसर्च के लिए है ना, जो यूनिवर्सिटी है वो क्या काम कर रही है, नंबर 1 अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो हमारे वर्दी वाइस चांसलर की जो डायरेक्शन है उसके मुताबिक हम अपने तमाम टीचर्स के लिए मुख्तलिफ ट्रेनिंग वर्कशॉप्स
करवाते हैं। मैनेज करवाते हैं ठीक हेड है। ऑफिस में। जी। ज़्यादातर ऑनलाइन होती हैं लेकिन है। फिजिकल भी होती हैं। जी। कोरोना के दौर से पहले ज़्यादातर ये सारी फिजिकल होती थी लाहौर में, हाँ जी। लेकिन जब से ये अपना कोरोना का ये मामला हुआ तो ज़्यादातर फिर वो ऑनलाइन चली गई हैं। ठीक है। एक तो ये है। जी। दूसरे नंबर पे ये है कि उनकी जो तहकीक है कि वो कैसे अच्छे रिसर्चर बने, हाँ जी। उसके लिए भी डिफरेंट जो वर्कशॉप्स हैं जी। वो भी हम करवाते रहते हैं, जिसमें हमने बताते हैं जी कि अब आप रिसर्च प्रोजेक्ट ऐसे लिखेंगे, जी। अपना पेटेंट आप ऐसे लिखेंगे। बल्कि अभी ये 27 फरवरी को हेड ऑफिस में इस हवाले से हमारी एक बल्कि प्रिंसिपल डायरेक्टर की, टीचर की भी है और जो प्रिंसिपल डायरेक्टर्स हैं उनकी भी ये एक ट्रेनिंग का सिलसिला वहाँ पे ये होगा। मतलब रिफ्रेशर कोर्सेज रिफ्रेशर कोर्सेज हो रहे हैं वो जी, प्रॉपर parallel हो होते रहे रहते हैं। और हम अपनी सारी फैकल्टी को इनकरेज करते हैं जी। कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिसर्च प्रोजेक्ट्स को अपना मुख्तलिफ इदारों में सबमिट करवाएं। जैसे कि अभी पिछले दिनों पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन है, जी। वहाँ पे हमने प्रोजेक्ट्स जमा करवाए हैं। सही है। और अभी ये जो था NRPU जो था HEC वाला, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह 20 के करीब जो है हमने अपनी जो प्रोजेक्ट्स हैं, प्रपोजल्स हैं, वो वहाँ पे जमा करवाई हैं। तो जो ट्रेनिंग है ना, ये तो एक ऐसा सिलसिला जो मरते दम तक चलता है, चलता रहता है। और जब तक टीचर अप टू डेट नहीं होगा जी। वो स्टूडेंट को अप टू डेट नहीं करेगा। सही बात है। लिहाजा टीचर को फर्स्ट अप टू डेट होने के लिए उसकी ट्रेनिंग, उसकी जो है वो अपना क्या कहते हैं अपना वर्कशॉप्स वगैरह, सेमिनार, वो बहुत ज़रूरी है। सर मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि मिनट्स हमारे पास सिर्फ बाकी 3 बचे हैं, इंतहाई इख्तिसार के साथ, आप जो हमारे तालीमी इदारे हैं इनका मेयार तालीम बेहतर बनाने के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या कहेंगे? देखें जी, पाकिस्तान का जो तालीमी मेयार है उसको हम बेहतर कैसे कर सकते हैं। जी। सबसे पहले तो हमें पहले मेयार को डिफाइन कर लें। सही है कि हमने रखना मेयार क्या क्या है सही है। हमारा, ठीक है। जी। अच्छा, अभी आपने जो बात की है ना, अभी मैं इसके हवाले से ये एक छोटा सा ये आपके सामने मैं डाटा पेश करता हूँ जी, कि इस वक्त इस्लामाबाद में जो लिटरेसी रेट है वो 96% है। ठीक है। इस्लामाबाद को छोड़ के बाकी जितने ज़िले हैं, हाँ जी। डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पे है 23%। हाँ जी। ठीक है। अब जो हमारे ट्राइबल एरियाज हैं जी। वहाँ पे फीमेल का जो लिटरेसी रेट है वो 9.5% है। क्लियर जी। अच्छा, अब आ जाएं कि पाकिस्तान में पाकिस्तान को अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे इस वक्त देखते हैं जी। तो 193 जो कंट्रीज़ की लिस्ट है, पाकिस्तान उसमें आ रहा है 164 नंबर। ओहो। जी, मतलब बॉटम में है कहीं। बहुत ही उसमें जी। होनी चाहिए। जी। अच्छा, अब यहाँ पे आप ज़रा एक और चीज़ देखें कि आखिर इसकी वजूहात क्या हैं। जी। अच्छा देखें, आप जब भी कोई सिस्टम को बेहतर करते हैं ना, तो सबसे पहले आप उसको प्रायोरिटाइज करते हैं। सही है। मेरे ख्याल में हमारे मुल्क में एजुकेशन इज़ द मोस्ट निगलेक्टेड डिपार्टमेंट। सही है। अब उसको आप वजह पूछेंगे कैसे। जी। अब देखें, पूरी दुनिया में एजुकेशन के लिए जो बजट है GDP का वो 4% तक होना चाहिए, 4%। जी। अब अगर आप पाकिस्तान को देखें तो जो पाकिस्तान का जो ग्रास जो डोमेस्टिक ये जो है अपना बजट प्रोडक्ट है, वो क्या है टोटल अगर बात करूं, जी। वो है 338.4 अमेरिकन बिलियन डॉलर। सही है। क्लियर जी। और हम उसमें से खर्च कितना कर रहे हैं एजुकेशन पे, यानी एजुकेशन से मुराद जिसमें स्कूल भी है, कॉलेज भी है, यूनिवर्सिटी भी है, और वो आ रहा है जी 1.87%। चले राउंड ऑफ करना 2% हो गया। हाँ जी। अब 2% जो है GDP का वो हम खर्च कर रहे हैं, यानी आधे से भी कम खर्च कर रहे हैं। जी। रिक्वायरमेंट 4% की है, हाँ जी। हम कितना कर रहे हैं? आधे से भी कम है। आधे से। अच्छा, अब यहाँ पे आपको बताऊँ, यहाँ पे गवर्नमेंट को थोड़ा सा सपोर्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है। अब देखें, HEC ने गवर्नमेंट को प्रपोजल दी कि वो 126 बिलियन जो है ना वो यूनिवर्सिटीज़ को दे। सही है। 126 बिलियन। जी। और हमें कितने मिले हैं, ये पिछले साल की बात है, ओनली 25। सही है। कहाँ 126, कहाँ सिर्फ 25। तो देखें, जब तक आप एक इदारा चलाते हैं, आप सबसे पहले तो ये देखें कि वहाँ पे आपने फाइनेंशियल जो मैटर्स हैं उनको बेहतर करना है। जी। जब तक टीचर को, जी। जब तक टीचर खुद फाइनेंशियल उसकी पोजीशन बेहतर नहीं होगी, हाँ जी। जब तक वो खुद जहनी सुकून में नहीं होगा, वो कैसे पढ़ाएगा जी। सही बात है।
अब आप देखें इस वक्त में अगर करंट सिनारियो की मैं बात करूं, हमारे टीचर इस वक्त रोड्स पे हैं, पेंशन उनकी बंद हो गई है, खत्म हो गई हाँ है, जी। सारी उम्र लगाने के बाद पेंशन नहीं मिल हाँ रही, जी। इतना कट लग गया है कि वो बंदा बस पेंशन होने के बाद वो क्या करेगा, उसका अब सारा ज़हन उसकी तरफ चला गया। सबसे पहले जी। अगर आप तालीमी इदारे को, निज़ाम को बेहतर करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स चूँकि हमारा सेंटर है, जी। हमने पहले सबसे पहले जो स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटीज़ हैं हमने वो प्रोवाइड करनी है, जो सेंटर ऑफ एजुकेशनल सिस्टम है। जी। देखिए हम अगर स्टूडेंट हैं तो टीचर हैं, जी। तो सबसे पहले तो हमने स्टूडेंट्स को फैसिलिटी देनी है। जी। दूसरे नंबर पे टीचर्स को आपने उनका जो फाइनेंशियल बर्डन है उससे आपने आज़ाद करना है। जी। ठीक है जी। हाँ जी। ये मैं इस तरह अगर हम इसको देखें तो मेरा ख्याल है कि इसमें काफ़ी हद तक बेहतरी आ बेहतरी सकती आ है। सकती सर आखिरी क्वेश्चन और इंतहाई इख्तिसार के साथ 30 सेकंड में कि जो हमारी यूथ है, नौजवानों के लिए आप क्या पैगाम देंगे? है। सर जी ये पैगाम मैंने क्या देना है, ये हज़रत अल्लामा इकबाल वो पहले दे चुके हैं, सबक पढ़ फिर सदाकत का, शुजात का, अदालत का, कि लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। देखिए पाकिस्तान 1947 में ऐसे नहीं बना, जी। हमने दुनिया को लीड करना है, हमने बिल्कुल। दुनिया की इमामत करनी है, बिल्कुल। लेकिन इमामत तब करेंगे जब तक ये 4 चीज़ें हमारे अंदर नहीं आएंगी। सही है। सदाकत, जी। शुजात, शराफत। शराफत और अदालत, ये सही। चीज़ें हैं। ठीक है जी। जी सर, थैंक यू सो मच। आज का सेशन माशाल्लाह बड़ा अच्छा रहा। और नाजरीन व सामीन, आज का हमारा प्रोग्राम का वक्त चूँकि ख़त्म हुआ और वक्त के दामन में इतनी वुसअत नहीं कि मैं मज़ीद को क्वेश्चंस डॉक्टर साहब के सामने रख सकूं। इंशाल्लाह किसी और सेशन में ज़रूर इनसे कुछ 2 घंटे का ज़रूर सेशन करेंगे। और आज की बड़ी फ्रूटफुल जो हमारी डिस्कशन थी वो रही। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान मोहिउद्दीन अवैसी को प्रोग्राम बातों बातों में मोहिउद्दीन अवैसी को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम चैनल। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने से जुड़े रिश्तों का बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।